मतलब उसने बोला कि जब वो फैमिली को मिले जाता है ना तो उसके वहां पे वो लोग के घर पे मच्छर बहुत होता है। तो मच्छर इतना होता है ना कि वो लोग को कौन किधर कितना काटता है ना, उसके बाप और उसके उसपे ना ऐसा वो रहता है, काउंटिंग रहता है गेम, कि मेरे पे 10 है तेरे में 9 है, तू हार गया, ऐसा सब बातें कर रहा था मच्छर मच्छर। Hello, folks. If you have not read the title for whatever reason, sure, you haven't. You are at F1 Fanfiction. Today's episode is the best episode that we are gonna record. It's gonna be full of the pre-race stories, the last race stories, this race's stories, this race's reviews, and one banger of a banter. We are your hosts. I am Akash. And I'm Sarang. And today we have a very special third host. Off to you, third host. Take it away. हाय गाइस, तो आई एम विराज गिलानी। आपने मुझे देखा होगा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, और नहीं देखा है तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी है, क्योंकि अगर आपने देखा है तो काफी सैड लाइफ है और कुछ काम ढूंढ लो प्लीज। बट हाँ, आई हैव बीन अ वेरी न्यू फैन ऑफ Formula 1 and these guys were like प्लीज आओ और थोड़ा हमको ज्ञान दो। बिकॉज मैंने 2-3 चीजें ऐसी की अभी रिसेंटली that I deserve this spot. So I've been very privileged to be called here as a host. So let's have fun, and I'll also share some stories what I went through and make you guys feel jealous today. we already are. Don't worry about that. No, man, thank you for being here. It's a pleasure, is all ours. But let's get into the Silverstone weekend, man. Like, hometown for Mercedes. Again, for those of you who don't know, Viraj is a diehard Mercedes head. Yeah, Show see, them there's, that cap. Yeah, there's there the, it is. there's the, so Mercedes home track. Coming into the weekend, Toto said, like, if I give Lewis even a subpar car, he will win this race. To be honest, it did feel like it was his race to win because Ferrari was watching up their strategies. As usual. But before we go anywhere, man, let's address the whole scary lap one race start thingy. Yeah, what are your thoughts on that race start? The crash. Yeah, honestly, जब मैं so I was out, I was not watching the live match तभी, and I was out, and मेरे को ना मेरे फ्रेंड का फोन आया कि तूने देखा। मेरे को लगा हैमिल्टन जीता, मतलब मैं पागल हो गया ऐसा सीन था, ठीक है। मुझे लगा कि इसने मस्त आगे चला जाएगा। देन ही सेड कि, और उसको ना, so he just started watching Formula 1 and Drive to Survive से चालू किया होता है, and मेरे like I might be a 2-year-old fan or maybe more than that, but he's तो ऐसा 2 दिन फैला हुआ है, right? तो उसको ना एक तो नाम बोलने नहीं जम रहा था, ठीक है, कि किसको प्रॉब्लम हो रहा है वहां पे। एंड इट्स लाइक, अरे वो जो को देखा। मैं बोला क्या हुआ? बोला भाई मैं अभी इंस्टाग्राम को, सो देयर लॉट ऑफ पेजेस हु आई फॉलो, वो लोग ने ना ऐसा डाला था और मैं देखा और आई वाज स्टन्ड। एंड मेरा पहला था कि फक, ये जिंदा है कि नहीं। कैसा, और it didn't stop. It didn't stop. But That's thank God exactly. to hello and all. Fuck, मतलब फट गया था यार, मतलब that shit. And he is posting selfies on Instagram and exactly. I am good. Exactly. And I am this. But what a guy, Russell also. Russell, he did not care about the, कि race चालू करूँ ना करूँ. He went to yeah. थोड़ा बहुत स्पोर्ट्समैनशिप दिखा। अभी मर्सिडीज के बाद और कोई ऑप्शन नहीं है। But honestly, as soon as he got out of the car, I thought this is a repeat of Imola where he's gonna go and slap this guy's head. No, but this time he is in the Mercedes, right? Like right. Last time he went and slapped Bottas in the Mercedes car. But I'm so glad he survived. But इतना ज्यादा टच हुआ था क्या? मतलब I was not sure. No, कैसा उड़ा? Exact, and it went like पूरा टायर के बैरियर के ऊपर से उड़ के गया वो. That was crazy. So the way I saw it, right, like Karun Chandok was showing this in a race replay, like when they were in the red flag situation. So the way
summary wise I got it was कि Gasly was squeezed and on his right was Russell and left was Zhao. और फिर because Gasly touched slightly on the rear left of Russell went into Zhao. Now immediately behind Zhao was I think Bottas. And Bottas's front wing ended up being like that launch pad for like Russell to just then interesting. go. And after that, it was like car's momentum just took him away. मुझे लगता है कि उसका ना वो ऐसा होता है अपने साथ ब्रेक और एक्सीलेटर वाला सीन रहेगा क्योंकि फक कैसा मुझे लगा रुक जाएगा आफ्टर वो जो ऐसा सैंड एंड स्टोन्स है वो सब रखे वहां पे मुझे लगा वहां पे रुकेगा पर भाई उसको तो पार कर दिया सीधा मतलब एंड वहां पे रसल भाग के जा रहा है तो आई सॉ कैमरा वहां पे रसल भाग के जा रहा है और वो कैमरा रसल को कोई फोकस नहीं कर रहा है उसके बाद वो तो उसके जो वहां पे लोग थे हेल्प करने के लिए वो ऐसा करते सब ठीक है भाई भाई कैसा and the worst part is कि F1 TV, right? They absolutely did not give any information about what's happening with Zhao right up till 5 minutes before like the race was starting. But I think that's so fine. It was no. But they didn't even say that he's okay. So it's like तो ये ना like during the red flag किसी ने तो बोला like someone said they wanted to avoid what happened during 2018-17 Anton Hubert's crash कि like all the focus went to the car and at that point so it was a death situation right कि वो मर गया था of course and that is very traumatic to some people and here they didn't know what Zhao's condition was like the way that crash was they were sort of like fingers crossed कि he's alive. So if God forbid he would have died or something serious would have happened, like it would have been very traumatic. So I think that's why thoda they've changed that policy maybe कि नहीं बताएंगे like until we hear कि everything. No, but I completely understand that they don't want to sensationalize it and show the crash and show the replays and everything. I am totally in for that completely. But at the same time, I also feel that they should at least inform the audience of if he's okay, especially when they knew when he was. I don't know, it felt a little odd, especially they left us hanging for like 30 minutes or something like I think what's going on. का protocol, that's true, because panic situation भी बहुत हो जाता है ना, family सब बहुत कुछ यार थोड़ा news और सबको तो मसाला ही चाहिए रहता है in general, तो it's better because I think जब भी माइकल शूमाकर के वक्त जो है उसका जो आर्च राइवल था like Senna died, right? Senna died during Senna died तभी भी बहुत बड़ा सीन हुआ था इसके लिए तो वो सब चीजें से and I think anything happens in the cricket ground also like since I'm also a cricket fan तो वो लोग नहीं बताते till the time वो लोग सीधा ad चालू करते हैं because there's so much of panic in that particular room तो and also commentators भी क्या बात करेंगे ना मतलब क्या ही बोलेंगे उसके बारे में उस चीज के बारे में right तो till the time they don't have any confirmation or situation का क्या सीन है तब तक वो कैसे बताएंगे सबको लोगों को भी I think the only people they were telling was कि these I heard Gasly or someone went to the pit wall of Alfa Romeo to ask exactly what happened and they told him and he came back like so because Karun was on the pit lane like he told during the commentary ki I want to say Gasly but I could be wrong ki Gasly's been told what's the situation with Zhao and he's coming back from the pit wall but we will have to wait to hear what's happening. I was like ठीक है at least the drivers were informed whoever were curious. Makes sense. And he was and I think I saw a post also where there was there's something written like कि everyone is fine, they are under medical condition, सब सही है वो लोग का और medical observation में वो लोग and कुछ concussion कुछ भी नहीं था. I think वो घुमाते हुए वो हेलो पे घूम रहा था वो जितना भी घुमा मुझे लगा हेलमेट पे घूम रहा है भाई क्या प्रेशर होता वरना वो ऐसा नहीं होता तो just 3 years ago that would have been the case before the halo was introduced. Before the halo was introduced this would have been a fatal crash for sure. Yeah, this is crazy crash. गलाला तो टूट ही जाता सीधा. For sure. Yeah. For sure. Is there any stat around it like what G's or like
Not sure. I haven't seen a lot of analysis about this. I think they are just, for now the topic is too hot, so they're probably not discussing about it much. But Okay. I think as time goes, we'll find out more about it. Okay. Because I the way I was seeing it, क्योंकि Hotstar, I was seeing it on Hotstar, तो उसपे कैसा दिखा, like they went to that second turn and I saw someone slide in the background. मैं बोला ये कोई तो गया यार, shit, वापस डबल येलो या कुछ तो होगा कोई, और वो कोई तो गया जो escalate हुआ, फिर मैंने देखा उल्टा गाड़ी. Then I was like, okay, maybe Tom Cruise was there. So... Yeah. I was like, maybe Tom Cruise is there, so he's auditioning for the next Top Gun या कुछ तो, कि I can take so many ulta G's या कुछ तो. By the way, have you seen the photo of the track itself on Silverstone? So there are literally like 2 marks of his halo on the track itself where he slid on the track. It's crazy to see it. It feels as if a train went by from there. I am pretty sure Google Maps पे ना, like there'll be this Zhao's helmet या कुछ तो करके marker आ जाएगा. You know how there are some tracks where there like incidents हुए and people have marked that as like landmark. Zhao's wheel ऐसा Ferris wheel जैसा होता है ना, वैसा उसका wheel. Zhao's wheel. Sure, makes sense. जमीन चकड़ी हो गया था उसका. But dude, I'm so glad बच गया यार, genuinely. Yeah. True. Seriously. It goes to show, man, like how much F1 has improved in terms of safety standards, and like we have seen this multiple times now. Like I think we have talked about this multiple times that we have seen bad crashes recently, and still drivers have like walked out of it as if it's nothing. Of course, like Romain Grosjean, right. 2 years back, and there was another one I think recently last year. This guy Max's crash as well. At Silverstone. So glad that everybody walked out fine. I mean, even if there was carnage, but yeah. This isn't the first crash where like it's an opening lap, the roll hood has sort of ripped off, which is like that back filter right behind the halo. Right, yeah. It's the same Sauber / Alfa Romeo, and the driver is okay. So like 1999 में Pedro Diniz का Nürburgring पे accident हुआ था, which was similar situation, similar stuff. So I saw Mark Sutton put an image up today. Like I took that photo and I took this photo also. I'm like, interesting. Also, I don't know, but I saw a live crash when I was in Baku. Okay. F2 चल रहा था. So जितना अभी दिखता है ना, ये उससे 10,000 times ज़्यादा होता है. मतलब because it was turn 3 F2, right? Turn 3. Turn 3 or turn, I think it was 2 only, not 3. Starting में था. Turn 2. Starting में था. It was F2 और Red Bull का गाड़ी था. और it was right at the Paddock Club. ठीक है, सब मतलब you can see the whole thing. तो वहाँ पे left side पे, और जो आवाज आता है ना, तुम्हारा फट जाता है कि क्या हुआ. Because ऐसा कभी देखा ही नहीं ना, 300 के स्पीड पे 200 के स्पीड पे आदमी ठोक रहा है. और मेरा पहला आई कम फ्रॉम अ मार्केटिंग बैकग्राउंड, तो मेरा सबसे पहला थॉट, सेकंड थॉट तो वही था. फर्स्ट थॉट था कि बच गया कि नहीं. सेकंड थॉट था कि उधर जो वो लोग ने एडवर्टाइजिंग लगाया है उसका क्या रहेगा. क्योंकि वो टूट गया है. उसके बाद तुरंत बाद F1 का रेस चल रहा है, तो उधर तो एडवर्टाइजिंग चाहिए ना अपने को. आदमी तो बच गया, तो somebody is asking for a refund. उधर व्हाइट बैकग्राउंड कुछ नहीं होता. बट आई टेल यू, जितना मजा अपन लेते हैं while watching it on TV or Hotstar, उतना मजा वहां नहीं आएगा if you are taking a normal random seat, because you can't see the car. Exactly. You can't see the car. But so tell me this, Viraj, aren't there screens and actual commentary also going on to give you that experience? Like कि वो नहीं है, वो पब्लिक का आवाज से सुनाई नहीं देता. पहली बात तो वो स्क्रीन्स होते हैं, बट वेरी अभी क्या ही करेगा. तो स्क्रीन पे देखने जा रहा है तो तू भाई उधर देख. मतलब तो एक्सपीरियंस है वहाँ पे. लोग बाइनोकुलर्स और क्या क्या लेके बैठते हैं. बट फनी नहीं, लेजिट आई सॉ. सो व्हेन दिस वाज माय फर्स्ट डे, सो आई वाज पासिंग इनसाइड, गोइंग इनसाइड, एक छोटा सा गैप था वहाँ पे. F2 का रेस चल रहा था. लेजिट गाड़ी ऐसा क्या है ना, मेरे को लगा भाई ये कैसा देखता है पब्लिक. लाइक अगर नॉर्मल सीट है तो पब्लिक देख ही नहीं सकता है वहाँ पे, और ऊपर से क्रैश हो रहा है ना, तो वो सबसे पहले तो पता नहीं चलता कौन सा गाड़ी टूटा. उसके बाद मालूम पड़ता है रुक गया ना गाड़ी, फिर मालूम पड़ता है गाड़ी ये टूटा है.
क्योंकि you can't figure out till the time you are spotting the car from a very far end के गाड़ी अभी आना है वाला है, तब वो स्लो दिखता है, और जैसे ही तेरे पास आएगा तो वो दूसरा रेस तो लैप पार के आगे इट्स वेरी फास्ट। और आवाज क्या करता है भाई, अगर तुम लोग को आवाज का शौक है ना, ऐसा रोंगटे खड़े होंगे ना आवाज के, मजा आ जाता है। या मैन बहुत ज्यादा क्रेजी हो गया था। बट जब से आई हैव कम बैक एंड जब से टिल द टाइम आई वाज देयर, मर्सिडीज हमेशा पोडियम पे आया है। That is true. That is true. So basically they should be calling you more often. Is that what you're saying? मैंने तो डील रख दिया था वहाँ पे, मैंने तो बोल दिया था। So this all started with a very random fun. I'm a fan of Mumbai Indians also. So जब से मैं मुंबई इंडियंस का मैच, ये पूरा साल मुंबई इंडियंस वाट लग गई। तो जब से मैं गया था देखने ना पहला मैच, मैं बोला था मैं जीता के आएगा, मैं ऐसा लकी चैंप पे ऐसा कुछ फालतू बात करके आया था, रैंडमली इंस्टाग्राम पे मस्ती कर रहा हूँ, तो जीत गया। तो पब्लिक पागल, पब्लिक बोलता है अरे बाप रे तू तो है ही। और इट वाज इम्पॉसिबल कि मुंबई इंडियंस जीते कोई भी मैच, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट मैच का वो भी जीता, तो मुंबई इंडियंस का मैसेज आया मुझे कि ब्रो आई एम सेंडिंग यू टिकट्स प्लीज गो। तो मैं बोला ये तो क्रेजी है। फिर मैं बोला अभी तो ये सब हो रहा है, एंड so गुजरात टाइटंस जो है जीता वो, and so on that, अपन ने हराया। on that, like there was this big thing, like I Sarang, I don't know if you follow Gujarati comedy scene too, but I do not. So Manan Desai was supposed to be like the Gujarat Titan mascot, and like every match, and Gujarat had won every match, ऐसा एक भी मैच नहीं आ रहा है। हाँ, और अपन सब मैच आ रहा है, मुंबई सब मैच आ रहा है। हाँ, and then there is this Instagram पे पूरा टशन going on between Viraj and Manan, like who's the, और वो मैच मुंबई जीतता है। हाँ भाई, वो भी लास्ट मोमेंट पे आके, भाई लास्ट मोमेंट पे, मतलब लास्ट बॉल पे आया जीता। तो मैं बोला मैं तो क्रेजी फैन है, पब्लिक स्टार्टेड यू नो कि यू से आई हैव टिकट्स, यू गो ऑन माय टिकट, पब्लिक ऐसा फैनगिरी कर रहा है। मैंने क्रेजी, अब ये मर्सिडीज का आया तो आई वाज लाइक ये तो बहुत सही है मेरे लिए, क्योंकि इंटरनेशनल लकी चैंप बनेगा मैं तो, ये वो। और मैं उधर से आई स्पोक दिस गाय कॉल्ड डेविड हु हैंडल्स ऑल मार्केटिंग एंड हॉस्पिटैलिटी एंड ऑल दिस फॉर मर्सिडीज एएमजी। सो मैं उसको बोला देखो मैं इंडिया में ना लकी चैंप है, तो मैं आज आया ना तो मैं जीता के जाएगा मर्सिडीज को। तो वो लोग बोला अरे जाना, ये सब कुछ भी नहीं होता। मैं बोला अगर जीता तो रेस, आई विल टेल यू द फुल डिटेल अबाउट इट, बट जब रेस चालू हुआ ना तो उसको भरोसा ही नहीं था कि मैं सच बता रहा हूँ। उसने बोला अगर जीता ना मैं तेरे को पोडियम लेके जाएगा, वो कोई नहीं जाता वहां, मैं तेरे को लेके जाएगा पोडियम। मैं बोला चल डील है डन। भाई सडनली लेक्लेयर का गाड़ी फक हो गया, साइंस का गाड़ी फक हो गया, और ये फोर्थ फिफ्थ था, सीधा थर्ड आ गया। थर्ड हो गया। मैं बोला भाई क्रेजी। उसके नेक्स्ट रेस हैमिल्टन जीता कनाडा में, उसके बाद सिल्वरस्टोन में वापस जीत गया। हाँ, तो मेरा तो वो लोग का मैसेज आता है, मर्सिडीज एएमजी का मैसेज आता है मेरे को, crazy bro, this is insane. Nice. Yeah. No, but this race, right? Like this race, so the way it's going, Red Bull is gone. ठीक है, वो रेस रीस्टार्ट किया उन लोग ने, they didn't adhere to the overtaking that had happened in that first and second corner, and they restarted the race with like original setting. उसका भी कुछ तो they started debating why and all that. So apparently there are two safety car lines on the track. The second one is right after turn number 2, and all cars should have passed that second safety car line before the red flag was announced. But because all cars had not passed, so you know, they were like, okay, we'll go with the main setup that was there. So but I think that was the right call. I think that was the right call, because like it doesn't make sense to use the other order anyways, because there was so much chaos anyways that happened. नहीं, but that race by that point was like मुन्ना भाई, right? Like ये तो शुरुआत ही खत्म हो गया टाइप। मैं बोला अभी तो हाँ, और रेड फ्लैग आ गया, right? So it was that situation. Yeah. And that then race restart was also very hectic, where like these Leclerc, Perez and Max were just climbing on top of each other. तो उसमें मैक्स तो गया। इसका जब भी रेस का लास्ट लैप भी था, तभी भी पेरेज लास्ट लैप सम ऑफ द उसके पहले पेरेज और सैंस का क्या फाइट चल रहा था, हैमिल्टन का क्रूज मारा उसके वहां से। ब्रो मेरा ऐसा मेरा अंदर का आदमी बोला फक ये जीत रहा है क्या ये वाला मैच। फिर मालूम पड़ा मर्सिडीज का गाड़ी थोड़ा इतना अच्छा नहीं है, तो रिटर्न आ जाओ, क्योंकि तुरंत आगे आ गया था।
उसके बाद. No, but see, that's where I will tell you what happened was, like, I think lap 30s में कुछ तो चल रहा है, and the race at this point is, क्योंकि वो लोग continuously AWS metrics दिखा रहे हैं, where Ferrari was in the pit window of Mercedes. So if Mercedes would have pitted there very strategically, Hamilton would have undercut both the Ferraris because they were fighting amongst themselves, and he would have come in front of the Ferraris, and he would have won. Like at that point, I messaged a friend of mine saying Mercedes is winning, it's done. But for Honestly, some reason, there Ferrari was one versus point Ferrari where I thought chaluda. it would happen was when, and this is very common, I've seen this happen a lot of times. A lot of times, a lot of drivers like try to undercut Hamilton when he is just behind them, and then he takes the position and then just doesn't give it back. Never, he just keeps on driving. He doesn't pit. He somehow waits out for a safety car or something, and I really feared that would happen, and it could have happened as well because he pitted, and after like 2 laps after that or 3 laps after that, the safety car came out. So yes, he could have easily won the race that way. ठीक है, I think he's coming back. Yeah. yeah. ऐसा like I have a gut feeling. I think because यार ये साल बहुत गंदा है यार उसके लिए. मतलब I don't know what, apart from car, I don't know what is wrong, but it is so bad. Like I can feel, like when we spoke also, I can feel the उसको ना. So when we spoke, he didn't talk about race. Okay. He didn't talk about car. He just spoke about कि उसका गाड़ी कितना bouncy है वो ट्रैक पे, बाकू के ट्रैक में, because it was genuinely very bouncy. Like we could like right, ऐसा नहीं था, क्योंकि I saw speculations also कि जानबूझ के कर रहे हैं ये सब Mercedes वाले, उसको गाड़ी चेंज करने का है, ये वो ये सब all these things. But genuinely, like apart, like we had a gala dinner also. Like this is far away from the racetrack where he's in normal clothes and कुछ भी नहीं हो रहा है. अबे भी वो उसका पीठ वीट उधर कोई दिखाने वाला नहीं है, देखने वाला कोई नहीं उसको, वैसा मतलब जहाँ पे थे हम लोग, इट वाज वेरी क्लोज्ड इवेंट जहाँ पे हम लोग थे. तो ऐसा उसका पीठ वीट दुख रहा है उसका तभी भी. आई कुड फील द लाइक ही इज इन पेन. Right. तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, देयर उसको एक प्रेशर है, बट द वे ही स्पोक, द वे ही हैंडल्ड द क्राउड, व्हाट वेयर वी वर देयर, इट्स ऐसा लगता है कि डिजर्विंग है यार, इतना अच्छा है यार, कुछ तो करो इसके लिए, ऐसा लग रहा था. क्या सही आदमी है यार, genuinely. अच्छा, y'all also got to interview him, right? Like, so what was that like? So this is the race day, okay? Because उसके पहले we met Russell. We were aware that we were meeting Russell, but उसने ना randomly David, this guy, he calls us कि come in an hour, there's a surprise for you, and I was like कि वापस कोई गिफ्ट दे देगा Hamilton, क्योंकि ना उसने हम लोग को I have 3-4 Mercedes cap. पहले दिन पे उसने कैप दिया, दूसरे दिन पे उसने कुछ ऐसा देते रहा, गिफ्ट देते रहा, बड़ा AMG का बैग दिया and all these things. तो मुझे लगा और कुछ गिफ्ट ही रहेगा, कुछ अच्छा सा, क्योंकि महंगे लोग हैं ना, Mercedes वाले लोग महंगे बहुत. तो I was very happy in that. So मैं बोला चल ठीक है, मैं पहुंचा है कि you won't believe what is happening. Your life will change. ऐसा क्या हो रहा है? मुझे लगा गाड़ी वाड़ी में बिठा के लेके जाएगा कि अच्छा गाड़ी चलाओ, आज तुम चलाओ ऐसा करके, बट नहीं. तो he said we're meeting Hamilton today. We have 20 minutes with him, so you can ask whatever you want to ask and all. This legit me, the guy from Juhu. Basically, I was representing landmark cars of Mumbai. Okay. एक बंदा ऑटो हैंगर से आया था. वी वर ऑल मर्सिडीज बेंज इंडिया, बट अलग अलग कंपार्टमेंट से आए थे. Got it. और एक बंदा था सुदर्शन कार्स फ्रॉम बैंगलोर. तो 3 लोग थे. भाई हम लोग 3 और मर्सिडीज का एक बंदा और हैमिल्टन, यही लोग, इतने ही लोग. एंड इनसाइड लाइक पैडॉक क्लब अलग है, पर पैडॉक्स जो होते हैं ना जहाँ पे वो लोग चलते जाए ना, चलते रहते हैं, वहां पे सब कुछ बंद हो गया. वहां पे हम लोग बैठे, हैमिल्टन बोलता है क्या हाल है सब लोग. मैं बोला 2 दिन पहले ना मैं यहाँ पे ट्रैफिक में अटका है, अभी मैं इधर हैमिल्टन बोल रहा है क्या हाल है भाई. It was insane. And we that day, that part, he just told कि गाड़ी में बाउंस बहुत ज्यादा है, that's it. उसके अलावा उसने रेस का इतना नहीं बोला. Interesting. वो बोल रहा है dude, he is like I support pride. अपनी बातें कर रहा है, बोलता है I hate plastic. We try to avoid as much as plastic as we can. उसने बोला हमारा फ्रिज देख ले,
he took us around the fridge कि देखो एक भी प्लास्टिक का चीज नहीं होगा यहाँ पर. Then he said कि जब when he goes back to when parents and when family, तो हम लोगों ने पूछा तुम करता क्या फ्री टाइम में. बोलता है I want to become much more than a driver. I don't want to be just a racing driver. I want to be. So his plan is to become a producer. उसको movies बनानी है. He spoke to who's that guy? I forget his name every time. Rachel कौन है? जेनिफर एनिस्टन का ex husband कौन है? Brad Pitt. So he said कि Brad Pitt and I became friends recently. उसके बारे में बात किया. मैं बोला देखो मैंने उसको फनी में बोला कि आई अंडरस्टैंड कि ये शायद तुम्हारा गाड़ी का नहीं चल रहा थोड़ा. बोला एक बार मुंबई आओ तुम गाड़ी चलाना सीख जाएगा. कोई स्ट्रेस नहीं है इधर. तो इज लाइक कि ब्रो आई जेन्युइनली वांट टू कम टू मुंबई और इंडिया. there are a lot of things. प्रोडक्शन हाउस सीखना. मैं बोला मेरे पास भी प्रोडक्शन हाउस है. ऐसा है यूट्यूब पे तुम आओ कभी भी. So it was like I asked who handles your Instagram. It's crazy. I love your Instagram. बहुत पर्सनल बात. मतलब उसने बोला कि जब वो फैमिली को मिले जाता है ना तो उसके वहां पे वो लोग के घर पे मच्छर बहुत होता है. तो मच्छर इतना होता है ना कि वो लोग को कौन किधर कितना काटता है ना उसके बाप और उसके उसपे ना ऐसा वो रहता है काउंटिंग रहता है गेम कि मेरे पे 10 है तेरे में 9 है तू हार गया. ऐसा सब बातें कर रहा था मच्छर की. मतलब इतना सीधा. और you can come to know this guy is so silent. उसका जो बोलते हैं ना हवा रहेगा इसका कुछ हवा नहीं है भाई. इतना शांत आदमी. वो बात भी ऐसे करता है. So this is what I'm thinking. I was known and ऐसा. मैं I was like क्या बात कर रहा है भाई ये. फिर उसने बोला you want to take a picture, remove the mask, it's fine. ऐसा बात किया फिर तो मेरे साथ उसने ऐसा हाथ रख के. That's super man. मैं बोला ओ भाई क्या बंदा है ये. Then he left and said wish me luck today ऐसा करके. फिर तो क्रेजी हो गया भाई. चला गया पर साइन करके दिया हम लोग को कैप वैप और बस खत्म ब्रो. मतलब मेरा दुनिया हिल गया. नहीं, this is interesting, right? Like we have this episode coming out in August with Akshay Gupta, who's an ex motor racer turned entrepreneur, and we were talking about a psychology point of view. Okay, if you compare Hamilton versus Max, it's like दोनों का upbringing is so different, and you can see the raw family guy sometimes that Hamilton is. Right. और Max को सिर्फ एक ही चीज पता है कि जीतना कैसे है. That's it. That's true because we at the Paddock Club also there was a Max का interview going on. So I was there और उसका ना उसको लेना देना नहीं है दुनिया से. उसको सिर्फ पता है कि कौन सा पैडल दबाने का क्या दबाने का उसको जीतने का. He genuinely spoke about race. उसको सिर्फ जीतना है. उसको बस उसको एक तो मेरे को गुस्सा है कि उसने नंबर 1 दबा दिया ना उसका पीछे का. तू भाई मतलब मेरे को तो अलग गुस्सा है. मैं I had access with all the players to be very honest. I could have gone to any player and got a picture. But मैं Verstappen बोला तू नहीं देखो मैं तेरे से नहीं लेगा. उसका और हॉर्नर का ब्रो मैंने नहीं लिया. मेरे को नहीं चाहिए. उसको अलग कि see he's a very good driver. I agree. He's a brilliant driver. He'll be a super champion, whatever the fuck. But आदमी अच्छा नहीं है. वो मेरे को लगता है ऐसा अंदर से. And जितना I could closely talk to Hamilton, I know कि उसको ना दुनिया के लिए बहुत कुछ करना है. कि उसको पता है. And he spoke about fashion also. कि why he likes fashion. मतलब उसने 0.1% रेस का बात किया. वो भी उतने के बाकू में बाउंस है बस इतना ही. उसने रेस के उसको घंटा नहीं फर्क पड़ रहा था कि रेस आज रेस है भाई आज रेस है. ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था. No, but this is a very good thing यार. Like Vettel is also somewhere a very pro environment and this. I mean you've set a very good stage right now for कल जो हुआ वो right. Like वो crash हुआ है at one point and then पीछे I think Hanger Straight पे या किधर protesters were on the track. Yeah. My first thought is कि 30 Gs पे the car has rolled, gone off the tire barrier and the catch fence has caught it. But it was not able to stop 7 human beings to jump the fence. और वो लोग track पे आ गए. The whole protest, for those of you who've not followed, is the fact that they were protesting against governmental policies on oil
and being more environmental friendly, and then the whole topic of the problem is now. For y'all, like stories like this that Viraj just shared, right? Like there are these veteran drivers who actually care about it. Like itna PR nahi hota hoga the way you probably expect, but it is happening. These people are bringing the change. There is this initiative that FIA has of going carbon neutral by 2030. Right. And the good And part that is includes all the transport yes, for the everything, for everything, everything, end to end, everything, end to end. end to end. Yep. And they are giving Also, periodically updates on like kitna progress hai, which is like no one does that, right? As a target dal ke people forget. Also, we spoke also because I think now he lives in Italy now. Lewis? Yeah, he lives in Italy. Because I think most of the drivers lives in Italy. Gasly also lives in Italy. तो बहुत सारे लोग इटली में रहते हैं. There might be something. मैंने पूछा था उसमें को याद नहीं आ रहा है क्यों, because I think टैक्स नहीं है वहाँ पर. हाँ. So it's बहुत कम है टैक्स. बहुत कम है टैक्स. So we spoke उसका, हम लोग इतना रैंडम बातें कर रहे थे ना उस टाइम पे. हम लोग ने पूछा कि तेरा फेवरेट गाड़ी कौन सा है नॉर्मल गाड़ियों में. He said EQS. मतलब उसने बोला कि EQS मुझे बहुत पसंद because it's environmental friendly. वो Mercedes EQS चलाता है उसने बोला. So to which I thought कि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि ये भाई ये क्यों EQS चलाएगा. But that's a fact. He said कि मेरा फेवरेट गाड़ी EQS, मजा आता है उसको चलाने. True. मतलब नहीं, even Vettel, right? Like if pet lover. That's what he said. He's a Roscoe. उसका dog है. Vettel too, यार. Like if the race is in Germany or anywhere he has a house, you will see him on that electric Vespa. स्कूटर पे आता है यार रेस ट्रैक पे. हाँ. और वहाँ पे जेन्युइनली ऐसा जितना भी तुम लोग को रहेगा ना, जो ये लोग का तुम लोग का माइंडसेट है लोगों ड्राइवर्स के बारे में. Dude, if you are in a paddock club, you can do whatever the fuck you want to do. If legit वो लोग ने मुझे बोला था कि if you find a driver, you can go talk to him, ask about him, and take a picture, talk whatever you want to do. Dude, I met Ricardo the first time I'm there. और I was a fan of Ricardo. Till the time I didn't started researching, मेरे को हैमिल्टन के बारे में मालूम पड़ा, रिसर्च किया, मजा आया ये वो. रिकार्डो में मिला वाला, रिकार्डो प्लीज से हाई टू इंडिया वाला, हेलो हाय, और फिर उसका 10 मिनट बात किया उनके साथ बैठ के. और F1 के पेज पे आया था मैं भी, ऐसा इंस्टाग्राम पे पेज पे स्टोरी पे आया था कि अरे ये सब भाई बात कर रहे. ब्रो इतना बकचोदी आदमी है वो. मतलब इंटरव्यू लिया था पैडॉक क्लब में आया था, इंटरव्यू लिया था, बोलता है और पब्लिक इतना चिल्लाया ना उसके लिए, बोलता है ठीक है आज मैं रेस ही नहीं कर रहा हूँ, मेरे को तो मिल गया अपलोड. बोला ऐसा चल के मतलब इतना सही आदमी है. वैसे भी रेसिंग करके फायदा क्या है अभी इसको? उसका कुछ नहीं है. उसका धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है आजकल. हाँ. तो मस्ती कर रहा है, पब्लिक उसको शूई हुई बोल रहा है. लाइक लेजिट उसका इंटरव्यू देखने में मुझे बहुत मजा आया क्योंकि वो ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा रैंडम इंटरव्यू चल रहा है. बाकी लोग सब ऐसे सीरियसली आके, वो पेरेज आया था सीरियसली रेस बोल के चला गया कि उसका लाइफ का कर्तव्य वेस्टर्न को जिताना है, ये ऐसा करके चला गया. He's the Lakshman to the Ram. Yeah, legit. Max भैया जीतने चाहिए. There's somebody joining, Arjun Srivastava. Arjun, introduce yourself. Hi guys, I'm Arjun. I am Viraj's friend. We work together. So he told me there's this F1 ka podcast. You should do it. Again. And for those who are on audio only, you can't see. Arjun is full blown Red Bull Tessos Pelcel, पूरा ऐसा merchandise पहन के बैठा है. तो I'm assuming he's a Perez fan. Yeah. But, I'll tell you what happened. So Friday को P1 जब हुआ, sorry FP1, तो मैंने ना हैमिल्टन कुछ ऐसा फर्स्ट सेकंड पे था, बोटास फर्स्ट पे था, कुछ तो था वो लोग का. एंड आई डिडंट सी के वेस्टर्पन सिर्फ 3 लैप चलाया है. ठीक है. तो मैं चढ़ रहा है अर्जुन पे कि क्या हुआ, क्या हो रहा है. फिर FP2 भी साला हैमिल्टन ऊपर था. फिर क्वालिफाइंग भाई मतलब तो खा गया दोनों, पेरेज और वो. तो हम लोग का ऐसा चलता रहता है सब झगड़ा रेड बुल और उसका लेके. नहीं यार, बट क्वालिफाइंग वाज वेरी स्पेशल क्योंकि the rain was ऐसा pocketed.
So some drivers benefited a lot from coming when there was less rain, and they did a very good time. फिर जो बाकी Latifi. were driving, Latifi, man. Q3. Oh my god. I think it's the first time he reached Q3, and then he crashed right after. Obviously. हो गया ना, career best है पागल. उसको सैलरी मिल गया था कल. But So what were we saying before this? I think we were talking about Ricardo का you said. oh right. Ricardo. Yeah, we were All the talking about drivers are Paddock Pass. We were Yeah. talking about drivers and their environmental consciousness and I think all that stuff. Yeah. Yeah. But these going guys back, are not stars, yeah. These guys are not stars. जैसा Not even Ricardo. तुमको no bro. मतलब ये लोग ना एटीट्यूड ही नहीं है. ये लोग क्या जीरो एटीट्यूड है bro. अच्छा. मतलब Interesting. जितने लोग को मैं मिला हूं ना मैं लाइक लेजिट हॉर्नर इधर जैसे अपन बैठे ना वैसे इतना दूरी पे वो खाना खा रहा है bro मेरे बाजू. मतलब people can see this person eating food. हाँ. उसको लोग को कुछ फर्क. वहां पे वो हास का प्रिंसिपल वो भाई साहब फोन पे बात कर रहा है, गाली दे रहा है उधर भी सबको. मतलब रेगुलर, मतलब किसी को नहीं फर्क पड़ रहा है. मतलब कैसा है पता है, लाइक सारंग, यू एंड आई आर वाचिंग द रेस ऑनलाइन लाइव. यू सी ऐसा पूरा ग्लेयर्स पहन के, या फिर ड्राइव टू सर्वाइव ऐसा पूरा मैंशन दिखा रहा है, और विराज उधर ऐसा चावल ले रहा है और वो डकार ले रहा है इधर. मैं सच्ची वो लोग का प्लेट, मतलब मेरा थोड़ा सा मेरा स्पून यहाँ पे चला जाता था तो उसके प्लेट पे चला जाता था. सच्ची. और ब्रो टोटो का बहुत वट है उधर, बहुत. मतलब टोटो का बहुत औकात है ज्यादा. फर्स्ट ऑफ ऑल ही ओन्स हाफ द पैडक. Exactly. तो मर्सिडीज में पैसा है, 3 either ड्राइवर में पैसा represents or owns either of half those that two. F1 grid. Aston Martin also he has stake, right? Williams he has stake. So much he has stake. Yep. ब्रो मतलब इतना इज्जत है पब्लिक, लेजेंड. यू कैन फील कि पब्लिक शांत हो गया है, टोटो जा रहा है. वैसा फट है उसका. क्योंकि अभी हॉर्नर जैसा रोज मिलता है ऐसा लगता है वो लोग कि जल्दी के हॉर्नर. भाई इसका तो ऐसा पब्लिक आया और मेरी ना सिर्फ फटी कि मैं उसको पूछूं कि नहीं फोटो के लिए. तो मैं बोला सर कैन आई टेक अ पिक्चर विथ यू. तो बोला ऑफ कोर्स. और उसका वो सा आवाज में बोला और स्माइल किया, वो ऐसा हाथ रख के स्माइल किया वो. फिर मैं उसको है ना बोला चल अभी बेस्ट टाइम है, अभी देख क्या क्या होएगा नेक्स्ट. और मैं मर्सिडीज का वो सब पहन के गया था ना. बोला क्या आएगा. मैं बोला एक काम, मैं उसको बोला आई एम सो ग्लैड मेरे पास हेडफोन्स नहीं है. तो हंसा बोलू, वो हंसा क्योंकि मेरा तोड़वोड़ ना दे. Nice. The famous Toto smashing meme. Yes. तो वो हंसा वसा मस्ती किया वो बहुत. फिर वो चला गया, बस इतना ही था. बट फन है ब्रो, वो लोग बहुत सही जगह है. सही है यार, सही है. I might go for the Singapore Grand Prix also and Abu Dhabi also. That's सही है. क्योंकि वहाँ पे ना मैं अपना वो बेचना चालू कर दिया था कि मैं यूट्यूबर है, मेरा ऐसा है, चेक में इंस्टाग्राम. अच्छा मैं भी करता है. आई वांट टू प्रमोट. ऐसी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. तो जो भी F1 के फैन है ना, फॉर एग्जांपल यू गाइस आल्सो, लाइक यू आर अ कट्टर F1 फैन. तो अगर मैं बोलेगा ना कि आई वांट टू प्रमोट द स्पोर्ट टू द इंडियंस एंड क्रिकेट ही बहुत ज्यादा है, F1 को भी देखना चाहिए. तो तुम लोग का अंदर क्या भावना लगा कि अरे वाह यार क्या सही आदमी है यार, अरे मतलब अच्छा है और आवाज होना चाहिए इसके अराउंड. तो वहाँ पे एक बंदा था जो हर ग्रॉ पी जाता है. वो लेजिट हर ग्रॉ पी जाता है. Interesting. तो उसने बोला मैं सिंगापुर रहता है और आई वांट कि तू ऐसा प्रमोट कर रहा है तो सिंगापुर वाला ग्रॉ पी में आ, इट्स ऑन मी. तो करना है, चिल करो, मजा करेंगे अपन. ये वो उसने नंबर दिया, उसने बोला कि कॉल कर, अपन बात करेंगे इस बार. तो बुला लिया. फिर और 3 टिकट ले लो. तो मैंने उसको बोला तो है कि क्या सीन है क्या नहीं. तो उसने बोला अबू धाबी भी तेरे को लेके चलूंगा, मजा आएगा. मर्सिडीज वाले से भी बात कर रही है कि टिकट का कहाँ से लेना, बिकॉज पैडॉक क्लब का टिकट कहीं ना कहीं से इन्विटेशन से मिलता है. तो मेरा तो सेटिंग में लगा दिया है थोड़ा बहुत ऐसे. तुम लोग देखना हॉटस्टार पे, बताना कैसा दिया. ओह श्योर.
I wanted to ask, तुम लोग F1 का fan ये Drive to Survive के पहले से हो कि नहीं, बाद में? हाँ पहले से भाई, हम लोग अर्जुन पहले से। ये ये सवाल मत कर। रहे हैं थोड़ा टाइम से रहे हैं। थोड़ा देखे। What was your first race? Like, when did you start? Let me see. I think This is old यार, कभी तो it's old. It's some old Monaco race. I remember Schumacher जब था तभी का है ये. And back then I wasn't like following F1, but like I was just changing channels. I came onto ESPN and I saw that there's some racing going on. I'm like, okay, this track looks pretty cool. And ऐसे देख रहा था, बस मुझे कुछ पता नहीं था. But then after that race, I started kind of following it, like trying to find out ये क्या है. But India में, of course, at that time it wasn't that popular, and the timings were always very odd to watch the races. But yeah, You guys are aware. And हाँ आकाश तू बता। नहीं मैं बोल रहा था, like for me I don't remember first race क्या था, but I remember like Mick racing his brother Ralph, and I'm like, oh Schumacher, oh और एक Schumacher, I wonder if ये दोनों भाई है. And then Mick and Ralph actual में भाई थे, and they're like fighting, and then ऐसा bits and pieces में याद है कि हाँ ऐसा सब रेस होते रहते. Correction, not Mick, dude, Michael. Sorry, Michael, yes. पप्पा और काका. तो and you know मेरा ना, I think मेरा तो मैं कोविड में मर गया था, डेड था, और मेरे को मालूम पड़ा नेटफ्लिक्स पे कि तो बहुत सही होने वाला है. एंड मैंने आई यूज्ड टू फॉलो, तभी भी ये सेना और माइकल शूमाकर थोड़ा बहुत चल रहा था, थोड़ा बहुत चल रहा था. और उसके बाद ये ड्राइव टू सर्वाइव आया तो मुझे और मजा आने लगा, क्योंकि देन वी गॉट टू नो व्हाट इज इनसाइड, क्यों ऐसा हो रहा है. लोग बातें करने लगे थे. हमारी एक फ्रेंड है नताशा करके, शी वाज अ क्रेजी फैन, एंड वी यूज्ड टू बी लाइक कि छोड़ना भी, इतना कहां मजा आता है, फन का आता है. एंड देन शी टोल्ड अस अबाउट कि वेस्टैपन है, हैमिल्टन का सीन चल रहा है, छोटा बच्चा आके लेके जा रहा है. तो बोला ये तो बहुत सही मसाला है भाई. एंड द वे दे Netflix also have shot, it's very dramatized, it's totally dramatized, very Bollywoodish. So I was so very, मेरे को तो बहुत मजा आता है मसाला देखने को. तो तब से मैंने फिर अर्जुन को दिखाया, अर्जुन टू बी फैन. I think he has more knowledge than me in terms of technicality also. I'm a fan of a sport, more of like, you know, पर वो उसको पता है. Yeah, I know, Arjun disagrees. नहीं, we've seen the same show only, but I think मैं थोड़ा ध्यान से देखता हूँ. नहीं मतलब ऐसा technically whatever they talk, I can read between the lines, so I can understand, which is why I think मेरे को थोड़ा ज़्यादा पता है. But yeah, मैंने कुछ ऐसा extra देखा नहीं. And I think you enjoy the sport more as well, since it is in general a technical sport. Like there is a whole engineering side to the sport, which most sport don't have. So I think people who are interested in tech in general kind of enjoy the sport even more with that aspect of it. Yeah, of course. And we also play PS पे ऐसा वो F1 की games and all. By the way, मेरे पास F1 22 भी आ गया है, तो उसको डाउनलोड करना बाकी है. Killer. तो वो सब हम लोग खेलते रहते ना, तो उसमें भी ये भाई साहब ऐसा टायर प्रेशर वैशर इतना कुछ चेंज कर देता है, और फिर वो जीतता है रेस. तो फिर मेरे को लगता है कि इसको ज्यादा पता है. मुझे लगता है कि इफ एनीवन शेयर्स एनी नॉलेज टू मी, आई फील ही इज बाप. मतलब वो मेरे लाइफ में मैं कुछ नहीं है तो ऐसा है. सही है. नहीं, बट स्पीकिंग ऑफ रेड बुल, अर्जुन, yesterday's race, were you more happy कि Perez, there you go. Perez was on. Were you more happy कि Perez was on the podium, or I was happy for Perez, of course, because I think the Red Bull team, they're partial towards this Verstappen. Of course, always. They've been always. So I want कि ये मेहनत करके अगर आ गया है ना बंदा, तो much better. For अल्लाह का बंदा है वो भाई, उसको आना चाहिए. For me the best part is कि Perez ही जीतना चाहिए, क्योंकि whenever he wins you get to see his dad. It's such a beautiful sight, right? And like that round ball guy,
He's just very happy, jumping everywhere. There is this awesome pic of like him hugging Lewis's father and kissing him on the cheek. Kissing him on the cheek. And Tom Cruise is looking at both of them. बहुत ही ज़्यादा सही picture है वो. Yes, two proud fathers. And then after that, there was another moment where Vettel was basically having a proud dad moment with Mick. Because of course, like he has kind of taken him under the wing. So like with Mick scoring his first points, so apparently Vettel was right behind them both, Max and Mick, and live in his car he was watching them battle it out. And interview में वो बोलता है कि I was totally rooting for Mick and shouting in the car that Mick go overtake him and things like that. It was pretty wholesome to look at that. But Perez had a good comeback here. Like I think his thing is आगे रह के I don't want to win. I will fall to the last place. Yeah, of course. And then, because at one point I feel he would have gotten P1. Like Sainz was a bit too ahead, but otherwise he would have gotten that P1 or वही same चीज. Last से आके first. Yeah. No, वो Hamilton ने किया था. हाँ. वो भी इसने मुझे बताया कि पेरेस तो मुझे लगा I was like very normally ना कि चल ठीक है Red Bull आ गया वापस पोडियम पे वैसा सीन था. But he said कि वो 18-19 था वो बहुत पीछे था वो because I didn't see the race. I have to last हो गया. He was dead last हो गया. मेरा रेस देखना बाकी है पर जितना मैं देखा पढ़ा थोड़ा बहुत इसने मुझे बताया लास्ट था फिर वहां से फाइट किया वाला भाई तो फिर मतलब जरूरी है उसके जीतना. गैप ज्यादा नहीं था सब प्लेयर्स के बीच में बहुत कम ही गैप था so ज्यादा गैप था भी नहीं but still but वो interesting था right like after that safety car it was like these three were battling both Ferraris and Hamilton and at least I was focusing on these three फिर अचानक से Perez आ गया और हैमिल्टन को ओवरटेक किया. मैं बोला एक सेकंड वेयर डिड ही कम ही किधर था अचानक से किधर से आया ये some reason I don't know why I had this feeling कि Perez आने वाला है like maybe not I didn't think कि podium पे आएगा. I thought he would be somewhere like 4th or 5th at least but it felt to me like he was because all throughout the race if you had noticed if you just like regularly check the leaderboard वैसे उसका name every 10 minutes बाद तुम देखते तो एक position ऊपर रहता था like हाँ. And one thing which I noticed which really helped him was the Alonso train. So basically Alonso had created a train behind him as usual and like all these guys were stuck behind him so I think they were getting frustrated तो वो लोग pit कर रहे थे one by one to try and you know try some different strategy and get ahead of him and since people were pitting, he didn't even have to overtake people on the track. He had fresher tires. He was just getting free positions. And he kept driving his consistent drive. And then he reached where he is at P2, which is... I enjoyed the battle for two. Yeah. तू अभी replay भी देखेगा ना मेरा बहुत crazy. Yes. I saw Perez and Sainz झगड़ा कर रहे थे. Sainz नहीं. Charles. Leclerc. And मजा आ गया था भाई देख के. That is very interesting, right? Like, because so both Ferraris are fighting, and Leclerc ka right front wing ka ender heads was clipped off after that lap 2 race restart with battle with Perez and Max, and he's still fast, and they are still fighting for like team orders de do and Leclerc ko aage jaane do. And I'm like, why? At the end of the day, he has lost his advantage and science is going to have... So, you know, there is this debate. There is this whole debate of science calling the shots. In Monaco, he did that and then everyone was very angry with science. Ki bhai, why is Ferrari letting science take all the calls? But I feel ki science has realized ki if he doesn't do that, his race will be fucked. Because अगर yesterday कल उसको बोला कि like leave 10 car length gap for Leclerc. That was just ridiculous. What the fuck were they thinking? I don't know. क्या हुआ था? So after like when that safety car was out because of Ocon parking and the race was going to restart, the Leclerc was leading the race, Sainz was second, and Hamilton was third. And the race engineer tells Sainz कि
back the pack up so that Leclerc has a 10 car length lead in front of you. Yeah, so that he gets some. Yeah. And then Science is like, essentially, long story short, Science is saying fuck off. कि भाई मेरे पीछे हैमिल्टन है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग को जो करना है करो. जैसे सेफ्टी कार गया उसने ओवरटेक कर लिया उसको. हाँ, of course. साइंस ने. And that made sense. Like, obviously, who does this? First of all, you fucked up your strategy. Now you're telling the other driver who is on a good strategy to fuck up his own race, so that basically they'll lose both the positions. Ferrari deserve नहीं करता मुझे लगता है इतना फास्ट गाड़ी है ना, गलती से बन गया है. Now they are just trying to, because there was this interesting, इसका कुछ फायदा नहीं है. Like legit गाड़ी फास्ट हो लगा, फायदा कुछ नहीं है इसका. कौन है? रेड बुल ही जीत रहे हैं. क्या फायदा है? वो P2 वो कहाँ पे आ गया? पेरेस कहाँ था? कहाँ से कहाँ आ गया? ये लोग का क्या है? अंदर अंदर झगड़ा कर रहे हैं, कोई गाड़ी जला देता है. It's like they don't want to win because they don't know what they'll do after winning. So they always want to be in the pursuit of winning. ऐसे बताते रहने का देखा यार, मैं वो होता है ना, जीतना है मुझे. क्लब में होता है ना कि वो लड़की को बोलते हैं कि हे डू यू वांट अ ड्रिंक, लड़की बोलेगी यस, तो फिर क्या कर रहेगा? You are not prepared only for yes. Exactly. अपन तो रिजेक्शन के लिए सुन रहे हैं. Oh man. But did you get a chance to speak with anyone from Ferrari at Baku? I spoke to Science, but very briefly. Said कि all the best for race और say thank you. मतलब ऐसा कुछ बात करने नहीं मिला तो. Right. मतलब ऐसा पास हो रहा था ना, ऐसे मतलब Science all the best ऐसा. उसने बोला thanks dude. Nice. इतना. Okay. But I spoke to Gasly. Oh, nice. How's Gasly? I'm personally a fan of Gasly. I want to know a little more. Bro, I am also a fan, and I think this happened when he got fucked from Red Bull. So I was like, bro, इसका ऐसा condolence तो भेजना चाहिए ना Instagram पे message के. Exactly. ऐसा. So after I think 2 months or 3 months, he replied on Instagram, and I was like, bro, कैसे reply किया? पागल हो गया था. बोला, imagine following a sport अभी recently. Then you are talking to one of the racer and driver and whatever. So I was like, ये तो बहुत सही है. Then I said कि ऐसा इंडिया से मैं, we are all huge fan of yours, and go kill it and show them. ऐसा मैसेज किया मैंने. तो उसने reply किया, yeah, that's the plan. So I told him when I was going also there, I told him, hey man, I'm coming to watch the race, and I was like, okay, please come see me. ऐसा सब हुआ और बात किया उसके साथ कि बहुत मजा आएगा. Then I met him personally. He told me कि I was at the Mercedes paddock. So he said कि मेरे paddock में आके बात कर मिलते हैं. Then I went there and बात किया, chill किया, मस्ती किया. क्या? But a very chill guy, very very chill dude. उसको फिर आया वो यूकी आया, उसके साथ मस्ती कर रहा थोड़ा बहुत. वो लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा रेस में क्या हो रहा है, कुछ भी चल रहा है. नहीं, वो लोग को लेजिट कुछ नहीं. बोला खाने में देख ये क्या बना है. तो बहुत सही था मतलब. और उसके बाद ये वेटल गया यहाँ से, तो उसको मैं बोला चिल करना है, मस्त ऐसा फुल मजा आ रहा है उसके साथ. अलोंसो इंटरव्यू दे रहा है वहाँ पे, पब्लिक चिल्ला रही है अलोंसो. अलग ही माहौल है रे वहाँ. सबसे ज्यादा क्रेज किसका था? हैमिल्टन का. वो आता ही Hamilton has to be. वो नीचे ही नहीं आता, वो आ ही नहीं सकता नीचे वैसा सीन. लाइक वो मर्सिडीज के ऊपर नीचे पैडॉक होता है जहाँ पे खाना पीना चलता है, उसके ऊपर वो लोग के रूम्स होते हैं, वहाँ पे इंजीनियर्स बैठते हैं कि कैसा करना है क्या करना है वो सब. तो वहाँ पे वो रहता है पूरा टाइम. नीचे आप आना रहता है ना, तो बाकी ड्राइवर्स ऐसा आराम से चलते हैं, ऐसा जा रहे हैं अपनी जगह पे, जा जाता है. और हैमिल्टन तो भागता है लेजिट. साइकिल भी है ना उसका, लगे थोड़ा वो क्या कोई मिल गया टाइप्स जादू स्टाइल, थोड़ा वो चला जाता है उसको, क्योंकि उसको 50 लोग आके रोक देंगे वैसा सीन है. सो आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू डेविड आल्सो, द मर्सिडीज गाय, कि हु सबसे ज्यादा व्हाट किसका मतलब ऐसे फॉलोइंग और वेयर. he said it is Hamilton because worldwide है उसका. हां ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर कंट्री से है, कि he is not only a driver उसका वर्ल्डवाइड से. So that makes sense also. I mean, of course, also being the only person of color on the track is something as well. हाँ, और कोई नहीं है. हाँ, but बहुत ही. So we spoke to Angel also.
वहां पे उसकी फिजियो वो बता रही थी हैमिल्टन का ऐसा सब है रोड when we went inside this the garage oh my god मतलब ऐसा वहां पे they give you headphones because you can't talk like you can't listen first of all तो वहां पे अलग से वो लोग का ऑडियो सिस्टम चल रहा है अंदर बात करने की हेडफोन्स में इतना जोर से बजता है सब कुछ जैसा एंड वो लोग का like you can feel inside every employee of Mercedes के ये लोग में बहुत गुस्सा है रेड बुल को लेके मतलब I'll tell you to be very honest I'm a fan of Mercedes but I love ये रेड बुल के मर्च मतलब सही दिखता है ऐसा very good I agree बहुत सही दिखता है तो मैं उसको बोला था कि मेरे को मर्च उसका पसंद है ब्रो बात नहीं किया मेरे साथ 10 मिनट ब्रो उसको बुरा लगा फिर मैं उसको बोला कि कैन वी गो इनसाइड फूफा जी रूठ गए हां बोला कैन वी गो इनसाइड रेड बुल ऐसा बोलता है डू नॉट एवर से इन फ्रंट ऑफ अदर एम्प्लॉइज ऐसा बोल रहा है मतलब बहुत लेजिट गुस्सा है उसको मतलब कैसा मालूम है अगर हॉरर बाजू में बैठा है ना मतलब जैसे क्योंकि मर्सिडीज और रेड बुल का ये पैडॉक बाजू बाजू में है तो उसने बोला अंदर आ जाओ उसने अंदर ले लिया हम लोग हॉरर बाजू में था इसके इतना वो उसका गुस्सा है इतना गुस्सा है लोग के अंदर तो मैं तो बोला भाई ये तो बहुत सही गॉसिप है इधर ये लोग का लाइफ देन वी वेंट इनसाइड द फर्स्ट थिंग वी सी इज वेयर जो ऑयल रहता है ना तो उसका विस्कोसिटी और उसका मशीन है सबसे पहले राइट एंड फोन्स एंड एवरीथिंग इज नॉट अलाउड so whatever and whenever you see the garage it's always from the outside you can't see the inside of the garage it's always Hamilton निकल रहा है और उतना ही दिखता है या तो फिर दिखेगा तो भी वो कैमरामैन बाहर रहेगा you can't see the back side of the car always you will never see that because it's very much confidential and you're not allowed with your phones or whatever the fuck you can't take inside so now you go there's a viscosity machine वहाँ पे they check के oil क्या था कितना गर्म हुआ कितना पतला हुआ क्या हुआ प्रॉब्लम क्या है उसमें सो सारे लोग इसके बाद आते हैं मर्सिडीज के पास ऑयल चेक कराने अच्छा लाइक ऑल कंस्ट्रक्टर्स हां अच्छा कंस्ट्रक्टर जो भी मतलब जिसको आना है वो लोग आते हैं यहाँ पे चेक कराने तो जब भी मैं गया था तो भी एस्टन मार्टिन का चेक कर रहे थे वो लोग वहाँ पे राइट उसका हम लोग नहीं देखा फिर लेफ्ट साइड पे ना सबके हेडफोन्स रखे पुराने वेटरन्स के कि क्या था उसमें निकी लौड़ा था सबके हेडफोन्स रखे वहाँ पे कि इसका एकदम फ्रेम करके रखा है देन वी गो टेक अ लेफ्ट वहाँ पे गाड़ियां रखी है जहाँ पे भी हैमिल्टन का गाड़ी है फॉर एग्जांपल तो वहाँ पे गाड़ी वो लोग ऐसा हथौड़ा से मार रहे थे स्क्रैप कर रहे थे कुछ ना कुछ चीजें क्योंकि बोला कि प्रॉब्लम है बोला कि वी कांट चेंज मच बिकॉज इट्स अ रूल अगेंस्ट द रूल पर वहाँ पे फिर वो FIA का बंदा आता है चेक करते कि सब बराबर है कि नहीं गाड़ी डाटा तो नहीं कर रहे लोग सो FIA का बंदा भी मर्सिडीज का होता है he is wearing Mercedes clothes but वो रहता है उसका right वैसा सब सीन है वहाँ पे गाड़ी वाड़ी बना रहे हैं वो लोग ऐसा बैठ के you then randomly ना एक बंदा गया ऐसा राइट साइड से तो मेरे को लगा कि किधर तो देखे ना इसको तो डेविड बोलता है कि ये बोनो है बोनो तो पहले मुझे लगा कि बोनो कौन फिर मालूम ना बोनो है ऐसा रैंडमली इधर से गया ऐसा बोलते ये बोनो ऐसा ऐसा वाला ठीक है ऐसा फिर then we go right this is where Hamilton goes at the last is the last stop for Hamilton वहाँ पे उसका ना strategically सब कुछ रखा है सबसे ऊपर हेलमेट उसके नीचे और एक हेलमेट का कंपार्टमेंट तीसरा हेलमेट का कंपार्टमेंट ऐसा रखा है फिर एक छोटा ड्रॉवर बाहर आता है उसमें उसका एक ईयरबड एक ही तो साफ करता है एक ही चाहिए वो भी वही एंगल में रखा है हर जगह ऐसा रख वो लोग बोलते हैं तो वहाँ पे उसके हेडफोन्स उसको अगर पानी पीना है वो पानी पिएगा जो भी है उसका जूस वो सब बना के रखते हैं वहाँ पे लास्ट स्टॉप देन ही गोस वेट चेक करता है एंड फक्स ऑफ वहाँ पे हम लोग ने कौन सा कंप्यूटर पे टोटो बैठता है कौन सा जगह पे मोनो बैठता है फिर हम लोग जितना तुम लोग सुन सकते हैं ना अपन जब भी नॉर्मल हॉटस्टार पे और सब पे वो पूरा नॉर्मल रेसिस का सुनते हैं रेडियो मैंने क्या सुना मैंने इनसाइड द गराज ना सिर्फ मर्सिडीज वाले सुन सकते अच्छा और वो लोग भी F1 डिसाइड करता है कि किसका क्या सुनाना है जब भी बाहर रहता है ऑब्वियसली आई कुड हियर totally whatever Bono is talking to so but are they talking continuously मतलब 3-5 मिनट में बोलते रहते हैं ओके अभी ये है इसका इधर क्रैश हुआ है लेक्लर की वाट लग गई है ये वो ऐसा सब कुछ बोलते रहते हैं लोग एक साथ प्रॉपर कन्वर्सेशन होता है प्रॉपर
एंड मैं सुन रहा था सब कुछ, और उन लोग ने बिठाया, सो आई एम हियर, ठीक है, हैमिल्टन यहाँ वेट चेक कर रहा है, और हम लोग को बोलता है सर सबको ऐसा फिस्ट बम्प दिया सबको, और फिर वो गया रेस में, गाड़ी के अंदर बैठा है, एंजेला घूम रही है सब कुछ लेके। उसको लास्ट टाइम जब मैं बाकू में था, इफ यू नोटिस, वो गया था और वो वापिस आया, क्योंकि उसको इतना पानी पिलाते हैं कि उसको उसको बहुत सुसु जाना रहता है, बहुत। तो बोला रेस के पहले भी मुझे जाने दे, तो वो ऐसा बकचोदी करने वापस आया था। वो मस्ती कर रहा है अंदर भाई, उसको लेना देना नहीं है रेस में, वो वैसा आदमी। एंड इमेज ऐसा है ना कि सीरियस सीरियस रहेगा, वो लोग अंदर सिर्फ चिल रहते हैं, बट जब भी रेस होता है ना तभी सब चिल, मतलब सब शांत, एंड पूरा गराज में सिर्फ एक्शन से बातें होती, कोई बातें नहीं करता, कुछ भी बातें नहीं होती वहां, सिर्फ बोनो बात करता है, कोई बात नहीं करता, क्योंकि मतलब वो जो वाले वो टायर्स निकालने का वो सब होता है, तो दे से इट्स अ टर्म फॉर देम, सो दे नाउ दे विल मेक अ मैकडॉनल्ड्स ऑफ द टायर्स, that's what they say inside, that's the term, because it's a M. That's why. Okay. So like now they'll make a McDonald's of the tire, ऐसा वो लोग करते हैं ऐसा, and they say now जो रेस इंजीनियर है, टॉप रेस इंजीनियर, उसका बोलते हैं now we'll make an orchestra, क्योंकि वो ऑर्केस्ट्रा वो ऐसे बोलते रहते हैं ऑर्केस्ट्रा वैसे। तो वो सारी बातें हो रही है, और फिर तीन लोग आके जा रहे हैं, 3 लोग आके बैठ रहे, वापिस खुद ना सुनते, बोला रेस से अंदर आया वो, ऐसा मतलब इतना सही, इतना फन है ना अंदर, बोला नहीं आने। But dude, what an experience. Then it took us to the race track tour कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, पूरा रेस यहाँ पे ये हुआ था, ये ट्रक ये टर्न पे ये हुआ था, यहाँ पे ये हुआ था। बाकू is always full of fun and surprise, तो वो सब बातें करते रहते हैं। गर्मी dude, वो टाइम पे when I was there तभी 50 डिग्री था, तो इसलिए वो लोग, and I'll tell you, I don't know if this is a fact or everyone knows about it, but एक गाड़ी टूटता है ना तो 1.5 करोड़ का खर्चा आता है, 1.5 करोड़ का। ठीक है, उन लोग के लिए क्या है, चिल्लर। तो इसके लिए हास और वो लोग का प्रॉब्लम उधर लगता है, वो लोग को कि टूटा तो भाई वाट लगता है। हाँ, I mean they had given make a warning also, क्योंकि स्टार्टिंग में उसने 2-3 बार ठोक दिया था like this season, so he had received a warning कि भाई if you crash one more time then घर पे बैठो। हाँ, and जितना there's a lot of dehydration and वो सब होता रहता है, so एक परसेंटेज बोला था मुझे याद नहीं है, उतना डिहाइड्रेशन होता है ना एवरी टाइम पे, your brain loses 10% of your functioning. Interesting. तो मतलब वो बोल रहा था कि इसलिए वो लोग का लास्ट मोमेंट पे डिसीजन लेना, वो सब करना एट द स्पीड ऑफ 300 और 250 300, इट इज कमेंडेबल। मतलब ड्राइवर लोग का स्टेट इतना फक होता है ना। उसने मुझे बोला भी था, एक एग्जांपल मुझे याद नहीं आ रहा है, उसने बोला तभी वो क्रैश हुआ था बिकॉज उसका ब्रेन फंक्शन 20% बंद हो गया था उसका, एक पर्टिकुलर रेस ड्राइवर था, क्योंकि तेरा फंक्शनिंग बंद होता था, इतना डिहाइड्रेट होता था, और 3 से 4 किलो तो कम से कम लूज करता है। They lose 2 to 3 kilos proper of water weight. तो या और बहुत ज्यादा प्रेशर होता है अंदर, ऊपर से लुइस का तो बाउंसिंग भी बहुत चल रहा था। जितनी बार आता था ना तो ऐसा लगता था कि वो ऐसा वीको का ऐड कर रहा है, तो फिर तो किसका तो ऐड कर ऐसा वो क्या मूव का ऐड कर मूव से ये उसका खुद तो बेचारे को होता था। पर खाना भाई क्या प्रीमियम खाना मिलता है वहां पे, मतलब हम लोग सिर्फ खाया है। तो ये तो लाइक फॉर द 3 of us राइट, इट इज लाइक कि हम लोग ऐसा हॉटस्टार पे या F1 स्काई स्पोर्ट्स या जिधर भी देख रहे हैं, इट्स लाइक कि वो सच अ प्रेशर सिचुएशन, द रेस इज ऑन, दिस थिंग इज ऑन। विराज इंडियन वेडिंग अटेंड करके आया उधर बैठ के गैसली बोल रहे खाने में नमक कम है, बोल रहे आज पका नहीं है बरोबर। तो सोचना कि जितना परसेप्शन अपने पास है उससे नहीं है वैसा, वो सब नहीं है वहां पर, बिकॉज मैं बहुत पर्सनली मिल के आया लोगों को। राइट, एकदम शांत है, आवाज नहीं कर रहा है कोई, मस्ती चल रहा है, पर सबका अलग ही एटमॉस्फेयर था। खाने में भाई तू जो बोले वो बना के देगा तेरे को, मतलब ऐसा सब का। आधी चीजें तो तुमको पता नहीं होगी, तू वेजिटेरियन है तो ये खा सकता है कि नहीं, मतलब बहुत महंगा, और फ्री की दारू लोग पीते पागल हो जाते हैं वहां पे तो यार। तो ये ड्राइवर लोग भी ऐसे लाइन में खड़े होते क्या प्लेट लेके खाने के लिए? नहीं अर्जुन, उसके लिए बेसिकली क्या होता है, पैडॉक क्लब अलग है और पैडॉग अलग।
And also interesting, I don't know if I wasn't aware, I don't know if you guys are aware, कि F1 is almost similar to a horse racing. पता है तुम लोग को ये बात? जैसे हॉर्स होता है वैसे गाड़ी है. जैसे पैडॉक जो है ना वो हॉर्स का टर्म, गाड़ी पैडॉक्स, हॉर्स पैडॉक्स में अभी, तो इट्स अ हॉर्स टर्म, तो वो इसके लिए वो सब सिमिलर है इसके लिए. तो पैडॉक क्लब, इसके लिए पैडॉक रखते हैं उसका नाम, क्योंकि सबके पैडॉक्स है वहां पे. तो पैडॉक क्लब ऐसा है, इसके सामने मर्सिडीज, रेडबुल सबके पैडॉक्स है, जहाँ पे एग्जैक्ट मर्सिडीज के सामने मर्सिडीज का पिट रहेगा, गैराज रहेगा, रेडबुल के सामने रेडबुल का गैराज होगा. यू नो, इफ यू वांट टू पी आल्सो, नो आई, सो आई विल टेल यू इंटरेस्टिंग फैक्ट. मर्सिडीज के पिट के बाजू में मेंस वॉशरूम लिखा है. तो मैं बोला चल मूत के आता हूँ. मैं मूतने गया, पेरेस मूत रहा है मेरे बाजू. ऐसा लाइफ है उधर, मतलब बाहर आके लोग पब्लिक मूत रहा है, मतलब सोचना, मतलब पेरेस मूत रहा है अंदर. तुम्हें क्या देखा है ना, मैं ऐसा बता नहीं सकता, ऐसा सब देखा है. ऐसा नॉवेल्टी पूरा चले गया फॉर वीराज. लाइक हाँ ठीक है, लोग गाड़ी चला के सच्ची ना, मतलब सिर्फ हैमिल्टन मेरा सबसे ज्यादा हाईलाइट. और मैंने ना, वो लोग ने मुझे पूछा था कि तुम लोग मैच सब पैडॉक क्लब से देखेगा कि गैराज से देखेगा टीम के साथ. तो जहाँ पे वो लोग, हम लोग, मैं बोला गैराज में देखेगा ना, पब्लिक चिल्लाएगा, मजा आएगा, कुछ ना कुछ चिल रहेगा. तो लाइव कमेंट्री के साथ हम लोग ने उधर देखा. वो भी लाइव कमेंट्री, मतलब मर्सिडीज वाला एक बंदा रहता है जो कमेंट्री देता है. करेक्ट. ऐसा नहीं कि नॉर्मल कमेंट्री, मर्सिडीज वाला बंदा रहता है, ट्रांसलेट करता है कि बोनो ने अभी ये बोला है, हैमिल्टन ने ये बोला है, रसल ने ये बोला है, इसने ये बोला है. तो पूरा वो कमेंट्री तुमको बताता है, बिकॉज यू कांट हियर शिट of whatever Hamilton is saying, because he's racing. Only Bono can understand or decipher this shit कि वो क्या बोल रहा है. But this guy also can understand, so he converts all these things to you. कि इसने ये बोला, इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था. तो वैसे सी. मैं वो पूछ रहा था कि रसल और हैमिल्टन का दोनों का गैराज अलग होता है, कि तो अगर तू ऐसा गैराज में बैठा है एंड ऐसे रसल ने हैमिल्टन को ओवरटेक किया एंड तू हैमिल्टन के गैराज में, तो तू खुश हो सकता है कि नहीं हो सकता? You are a Mercedes fan वहाँ पर. You can't be like कि मैं हैमिल्टन फैन है उसे. तो उसका टीम मेंबर अलग होगा, तो वो ऐसा नहीं है कि उनको कि मेरा हैमिल्टन जीतना चाहिए. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. You are a Mercedes fan, मतलब वहाँ के सबके रेस इंजीनियर्स अलग है, सबके वो सब अलग है, but you are inside a Mercedes fan. वैसा. ये रेडबुल और फरारी वाले क्यों करते हैं वर्स्टैपेन और इसके लिए? वो लोग का पर्सनल कुछ रहेगा, मुझे क्या मालूम. ये लोग तो भाई बहुत चिल है यार. इवन रसल एंड हैमिल्टन का दोस्ती यारी भी बहुत फन है, मतलब समझ में आता है वो लोग जब रहते ना अंदर. ऐसा कुछ सीन नहीं वो लोग का. लास्ट ईयर जाता तो असलियत मालूम पड़ती जब ये लोग बोटास के साथ करते थे सभी चीजें. हाँ शायद. आई वाज एक्चुअली रूटिंग फॉर बोटास. मैं चाहता था बोटास एक बार जीत के जाए यार, इतना प्यारा बंदा है. आएगा यार कभी तो. अल्फा रोमियो में मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ तो होएगा उसका, जैसे सब. नहीं, स्टार्टिंग में तो लग ही रहा था, पहला एक दो रेस था उसमें तो आ ही रहा था आगे. तो हमको लगा यहाँ से जीत के जाएगा, बट ठीक है, पता नहीं. बट बहुत फन था. Dude, I'll tell you about Baku if I can, if we have time. Bro, Baku as a city, bro, मतलब मैं दूसरी बार ना जाऊँ. अच्छा. मेरे को तुम 10 करोड़ रुपया देगा ना, तभी भी मैं ना जाऊँ. अरे इट्स अ लेजिट, तुमको ना एक अंदर डर है, मतलब यू कैन फील द फियर. वहां पे सिर्फ फॉर्मूला 1 होता है, इसलिए पब्लिक आते हैं, वरना मुझे लगता कोई जाता होगा. इतना इसलिए तो रखते रेस. अरे आई डोंट नो व्हाट इज देयर. सो आई टेल यू. सो prostitution is legal there. Okay. ठीक है. And before going to Baku or any city where I go travel, I make sure I watch a vlog कि क्या है सिटी में देखने लायक, पब्लिक का पूरा एक्सपीरियंस क्या है, क्या नहीं, ऑल दिस थिंग्स. तो मैं एक व्लॉग देखा जिसमें बोला कि ऐसा छोटे छोटे बच्चे आएंगे, लड़की आएगी, तुमको बोलेगी ड्रिंक पिलाओ, तुमको रोज देंगे, बोलेगे लाओ पैसा दो. सो 1 मन्नत व्हिच इज करेंसी ऑफ बाकू इज 45 इंडियन रुपीस. तो बोलेगी अभी 10,00,000 का है, 25,000 का ड्रिंक है, वो तुम लोग को देना पड़ेगा, लोकल से यू कांट फक आल्सो. रात को. एंड वहां पे ना सिस्टम कैसा, मतलब आई वाज इन हयात. सिस्टम कैसा है, दे डोंट से रूम सर्विस, दे जस्ट बार्ज इन. दे से रूम सर्विस एंड दे कम इनसाइड. हाँ ब्रो, वहां पे सिस्टम ऐसा था. सो इट्स लाइक रूम सर्विस, दे आर इनसाइड.
तो ऐसा ये क्या सीन है? रात को 4:30 बजे एक लड़की मेरे रूम में आती है, बेल मारती है और मेरी फट गई भाई, ये क्या सीन है इधर? तो मैं बोल रहा हूँ मैम प्लीज गो, मैम बोलता है लेट मी कम इन हनी, लेट मी कम इन हनी। क्या कर रही है? मैं बोला 4:30 बजे रात को क्या कर What the रहे भाई fuck? ये? दिस इज हयात रेजेंसी, मतलब ऐसा 5 स्टार। तो मतलब आई वाज लाइक, अब सबसे पहले ना मैंने आई होल से देखा तो उसने हाथ रखा है वहां पे, सो आई कांट सी हर Oh. फेस एंड आई कैन जस्ट लिसन टू दिस है। गर्ल सेइंग हाँ ब्रो का, हे हनी ओपन द डोर हनी, ऐसा सब बोल रही है। मेरा फट गया भाई, मैं ऐसा मतलब मैम गो, मैम मैम प्लीज गो मैम, ऐसा कर रहा हूँ मैं वहां। एंड दिस इज आफ्टर आई एम मीटिंग हैमिल्टन, मैंने रेस देखा है, मेरा लाइफ में इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है ये सब। रात को ये सब आई कॉल्ड अप द रिसेप्शनिस्ट कि ब्रो ये क्या है? बोलता है कि नहीं नहीं ये सब होता रहता है यहाँ पे, शी जस्ट वांट्स टू कम इन, यू चिल। मैं बोला चिल मतलब? बोलता शी गो अवे आफ्टर पॉइंट, डोंट वरी। मैं तो भाई जब तक मेरा सुबह नहीं देखा ना तब तक मैं तो हिला ही नहीं मेरे जगह से। फिर मैं निकला, फिर बोला मेरे को कल का अभी मेरे को एयरपोर्ट पहुंचने गया, तो मेरा फ्लाइट था कुछ 2 बजे, मैं 6 बजे से एयरपोर्ट पे बैठा, क्योंकि दैट वाज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी फॉर मी। तो वैसा डरावना शहर था मेरे लिए बाप। सही है सही है Man. इंटरेस्टिंग स्टोरीज है यार। आई थिंक क्या लेंथ थोड़ा 1 घंटे के ऊपर चला गया रहेगा ना सारा। Yes, audience though would be happy to hear about all the Yeah. stories, I guess. Yeah, So yeah. I'm glad you shared so much of your experience with everyone. This has been a nice episode, man. Yeah. And if you're a vegetarian, then if you want to go for the if you're a vegetarian, your life is fucked, by the way. In the Paddock Club. In the Paddock Club. वहाँ पे ऐसा खुलेआम सब कुछ काट पीट के दे रहे, मजाक कर रहे पब्लिक। मेरे को सिर्फ बैंगन पे चीज डाल के दिया है, बोलता है ऑबरजीन खाओ तुम सालो वेजिटेरियंस, ऐसा बोला है। बट हाँ इंटरेस्टिंग सही है यार। I was surprised, I asked also Hamilton को कि ब्रो तेरा खाने का क्या सीन है, because he's a vegan. हाँ, he is a vegan, exactly. तो बोला तेरा क्या सीन है खाने का? फिर मैं मुझे जो अंदर से रियलाइजेशन हुआ कि चुप साले गरीब, ऐसा मतलब मतलब मैं क्या ही पूछ रहा हूँ, नया उगा के देंगे यार उसको तो। हाँ तो मैं और जाने दे क्यों पूछ रहा हूँ। बट या दिस वाज माय स्टोरी। नहीं यार सही है folks, I mean I hope you all had super fun, like I don't know, ऐसा insights तो you never get to listen, so I hope this is a one of unique episodes here. Arjun, Viraj, I hope you all had fun on the show, like sharing these stories. For sure this has been like one good relationship formed with F1 fan fiction, and we hope to do this again with more stories coming.